الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اپنی اردو ترجمہ کی اگلی کلاس کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ کی کچھ آیات کی ہیں، نیکسٹ آیت کا بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں وا بھی پہلے پڑھا ہوا ہے، مین بھی پڑھا ہوا ہے۔ وا مطلب اور من مطلب سے، الناس آپ یہ لفظ بہت دفعہ سنیں گے، ناس لوگوں کو کہتے ہیں، لوگ جمع ہے یہ۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، من مطلب یہ چلیں بعد میں لکھ لیں گے۔ من مطلب جو یا کون، دونوں لفظ ہیں۔ مثلا آپ نے کہنا ہو نا وہ کون ہے، اب وہ آپ نے پڑھا ہوا ہے ہوا، وہ کون ہے تو کہیں گے من ہوا۔ آپ نے سنا ہوا ہے قبر میں سوال ہوگا من ربو کا، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے۔ من مطلب کون اور جو بھی ہوتا ہے، من کا مطلب جو بھی ہوتا ہے، ہو۔ من انتا، تم کون ہو۔ من مطلب جو، من کون بھی ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے۔ اگر جملے کے شروع میں ہو تو کون ہوتا ہے، پھر یہ استفہامی ہوتا ہے۔ جملے کے درمیان میں ہو تو مطلب من کا جو ہوتا ہے۔ یقولو، میں نے بتایا تھا لفظ کے شروع میں یا ہو تو ترجمہ میں وہ ہوگا، اور تا ہو تو ترجمے میں تم ہوگا۔ اب اگر آپ یا کو نکال لیں، باقی کیا بچتا ہے، قول، بات کو کہتے ہیں کہنا۔ تو یقولو مطلب وہ کہتے ہیں۔ اب چونکہ من یقولو ہے، جیسے میں نے بتایا تھا لفظ آپس میں ملے ہوں تو ترجمہ بھی ملا کے کرتے ہیں، تو من مطلب من یقولو مطلب جو کہتے ہیں۔ من یقولو مطلب کیا ہو جائے گا، جو کہتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من یقولو جو کہتے ہیں، آمنا۔ یہ اب دیکھیں میں نے بتایا تھا شروع میں لفظ کے نون ہو یا اس کے آخر میں نون الف ہو تو ترجمے میں ہم یا ہمیں آتا ہے۔ یہ لفظ کیا ہے، آمن پلس نا، ان دونوں کو ملایا تو آمنا بنا ہے۔ آمن ایمان سے ہے، نا مطلب ہم، ترجمہ کیا ہو جائے گا پھر، ہم ایمان لائے۔ ترجمے میں ہم کو ایڈجسٹ کریں گے تو کیا ہو جائے گا، ہم ایمان لائے۔ باللہ ان اللہ، با پلس اللہ تو کیا ہو جائے گا، اللہ پر۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من یقولو جو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے۔ یہ اصل میں یہاں سے منافقین کی بات ہو رہی ہے، جو زبانی طور پہ تو یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے لیکن دل سے وہ ایمان والے نہیں ہوتے تھے۔ اس آیت میں ان کا بیان ہو رہا ہے۔ قرآن پاک کی آیات اللہ کے نبی پر نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے ایک دفعہ ایسے بھی ہوا کہ منافقین کو نکال دیا تھا نام لے کے، فلاں فلاں نکل جاؤ۔ اینی وے منافقین کے بارے میں اللہ اپنے نبی کو اویئر کرتے رہتے، بتاتے رہتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ سو وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وا مطلب اور، بالیوم الآخر با پلس الف لام پلس یوم تو یہ بنا بالیوم۔ اس کے بعد کیا ہے، ال اور آخر۔ یوم آپ نے پڑھا ہوا ہے، با مطلب ان یا ود، بالیوم الآخر آخرت کے دن پر۔
आखिरत के दिन पर, यौम हमने पहले पढ़ा हुआ है। जो कहते हैं हम आमन्ना बिल्लाहि, हम अल्लाह पर ईमान लाए, व बिल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, वमा हुम, अब ये दो लफ्ज हैं, वा और मा हरफे नफी है, मा ला लम लन गैरु लैसा लैसत, हमने साथ पढ़े थे, मा ला लम लन गैरु लैसा लैसत। माँ के कई मीनिंग होते हैं, लेकिन हमने तर्जमे में देख के एडजस्ट करना होता है। माँ मतलब नहीं, हुम प्रोनाउन है, हुआ हुमा हुम जमा की, मतलब दे वो, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंते अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। तो हुम इज वन ऑफ देम, इसका मतलब होता है दे वो सब। बिमुमिनीन मतलब मोमिन, सिंपल। और लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए और यौम आखिरत पर, वमा हुम बिमुमिनीन, और जब वो मोमिन नहीं है। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे मुनाफिकीन का बताया है। लोगों में से मुनाफिकीन ऐसे हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए और यौम आखिरत पर, वमा हुम बिमुमिनीन, जबकि वो मोमिन बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो क्या है, मुनाफिक है। अब देखें, अगर अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान कोई ले भी आए और दिल से भी ले आए, तब भी वो मुसलमान या मोमिन नहीं हो सकता जब तक अल्लाह के नबी पर ईमान नहीं लाएगा। तो ये अल्लाह पर ईमान सारी दुनिया ही रखती है, वो भी रखते थे, और जो हो सकता है यौम आखिरत पर भी रखते हो, लेकिन अल्लाह के नबी पर ईमान नहीं रखते। तो मुनाफिक वो होता है जो अल्लाह के नबी से गरज रखे, अल्लाह के नबी पर ईमान ना रखे, सही, वो बंदा मुनाफिक है। तो उनका ईमान अल्लाह को काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह ने तो अपनी तौहीद का बयान भी अपने नबी की जुबान से करवाया, कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब आप इनको बता दें अल्लाह एक है। एनीवे, वमा हुम बिमुमिनीन युखादिऊन अल्लाह, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, युखादिउ, ये लफ्ज है खदा से, खदाउन, मुखादियत भी इसी से, ये होता है धोखा देना। तो अब देखें, शुरू में या आ रहा है, तर्जुमे में क्या आना चाहिए, वो गायब के लिए, युखादिऊना, और ये जमा की साइन भी आ रही है, या भी आ रहा है, मतलब जमा की बात, युखादिऊना मतलब वो धोखा देते हैं। इसका लफ्ज़ी माना क्या है, वो धोखा देते हैं, अल्लाह, अल्लाह को। अब देखें, अल्लाह ताला को कोई धोखा नहीं दे सकता। कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जिनका लफ्ज़ी माना मुराद लेना अल्लाह के लिए वो मुनासिब नहीं होता, इसलिए हम कहेंगे कि वो अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं। युखादिऊन अल्लाह, वो अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं। वल्लज़ीना आमनू, वाव मतलब, और अल्लज़ीना वो जिनको, और वो जो आमनू ईमान लाए, ईमान लाए, कैसे पता चला जमा है, ईमान लाया भी तो कर सकते थे हम, ईमान लाए क्यों कहा, क्योंकि वाव अलिफ आ रहा है एंड पे, जमा की साइन है, जो ईमान लाए प्लूरल है। वो धोखा देने की कोशिश करते हैं अल्लाह ताला को और ईमान वालों को, और उनको जो ईमान लाए, अपना ईमान शो करके ना असल में वो मुसलमानों को धोखा देने की कोशिश करते थे। है वो मुनाफिक थे, अंदर से काफिर थे, जब काफिरों के साथ जाके मिलते कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं। तो ये उनकी बात हो रही है। तो वो धोखा देने की कोशिश करते हैं अल्लाह ताला को और उन लोगों को जो ईमान लाए। वमा यखदाउना इल्ला अनफुसहुम, वमा यखदाउना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून।
वमा यखदाउना, अब अगेन वही है, वाव मतलब और, मा मतलब नहीं, वमा और नहीं, यखदाउना वो धोखा देते। ये पहले हमने पढ़ लिया है, एक चीज़ को बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। वमा यखदाउना, और वो धोखा नहीं देते, इल्ला सिवाय, इल्ला हरफे इस्तस्ना इसको कहते हैं। एग्जाम्शन के लिए किसी को एक हुक्म से निकालना किसी एक चीज़ को, मसलन आप कहें कि सारी क्लास हाजिर है सिवाय हामिद के, तो इल्ला हामिद कहेंगे, तो इल्ला मतलब सिवाय, उसको एक्सक्लूड कर रहा है बाकी के हुक्म से। वमा यखदऊना, और वो धोखा नहीं देते, इल्ला सिवाय, अनफुसहुम, ये देखें दो लफ्ज हैं, अनफुस प्लस हुम। अब ये जो अनफुस है ये जमा है नफ्स की, नफ्स कहते हैं अपने आप को, हुम मतलब उनके, देम या देर, अनफुसहुम मतलब अपने आप को। वमा यखदऊना, और वो धोखा नहीं देते, इल्ला अनफुसहुम, सिवाय अपने आप के, यानी कि एक्चुअली वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये कहना ना कि हम तो ईमान मुसलमानों के सामने शो कर देते हैं या हम ईमान लाए, अंदर से ईमान नहीं लाते, तो ये किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को दे रहे हैं ना। ईमान लाना तो उनके अपने भले की बात है, अगर नहीं ला रहे मुसलमानों को क्या फ़र्क पड़ना है, अल्लाह ताला को क्या फ़र्क पड़ना है? एक्चुअली वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि वो जहन्नुम कमा रहे हैं। अब अगली जो बात है, वमा यशउरून, वा मतलब और मा मतलब नहीं, वमा और नहीं, यशउरून, देखें लफ्ज़ या आ रहा है शुरू में, एंड पे वाव नून आ रहा है, या को निकाल दें वाव को तो बाकी बच जाता है शऊर। यशउरून का मतलब है वो शऊर रखते, वमा यशउरून, और वो शऊर नहीं रखते। यशउरून का मतलब तो है वो शऊर रखते हैं, माँ जब साथ लग जाए तो मतलब वो शऊर नहीं रखते। सो और वो धोखा नहीं देते, सिवाय अपने आप को, मगर वो शऊर नहीं रखते। मतलब इसको वो रियलाइज भी नहीं करते, यानी उन्हें एहसास भी नहीं होता कि असल में तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो जब एहसास की नेमत से कोई महरूम हो जाता है ना, ये बहुत बड़ी सज़ा होती है कि इंसान गुनाह भी कर रहा है और उसे फील नहीं हो रहा कि मैंने गुनाह किया है। गुनाह के बाद नदामत होना ईमान की निशानी है। अगर कोई गलती हो जाए आप उस पर नादिम हो फौरन। तौबा का माना क्या होता है? रुजू, वापस आ जाए, या अल्लाह गलती होगी माफ़ फरमा दे, अल्लाह माफ़ फरमा देते हैं। तौबा करना, तौबा की तौफीक होना इटसेल्फ ये इंडिकेशन है कि आपको माफ़ी मिल चुकी है। फिर ये ना सोचे कि मुझे पता नहीं माफ़ी मिली है कि नहीं, तौबा फौरी करें। तो एनीवे अगर गुनाह हो जाए तो फौरन उसका एहसास होना चाहिए, अंदर नदामत होनी चाहिए। एक बिल्ट इन आपके अंदर अल्लाह ने कॉन्शियस रखा हुआ, ज़मीर रखा हुआ, जो बताता है कि ये जो तुमने काम किया नहीं अच्छा नहीं है। वो ज़मीर आपको मलामत करता है, जब भी मलामत करे फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी मांगे। जिस बंदे का राइट इन्फ्रिंज किया उस बंदे से माफ़ी मांगे। कभी भी माफ़ी में सबसे बड़ा दुनिया का रिस्क बगैर माफ़ी मांगे सोना है। अपने गुनाहों की माफ़ी मांग के सोएं कि कोई आपसे नाराज़ है तो उससे माफ़ी मांग के सोएं, क्या पता दोबारा जागना नसीब हो ना हो। तो एनीवे यहाँ पे बात हो रही थी मुनाफिकों की, कि लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, जबकि वो मोमिनीन नहीं है बिल्कुल भी। वो धोखा देने की कोशिश करते हैं अल्लाह को और ईमान वालों को। वो धोखा नहीं देते मगर अपने आप को, यानी असल में दरअसल वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वमा यशरून, और इसका उन्हें शऊर भी नहीं है। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट आयत के तर्जमे के साथ। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको आखिर में बताता चलूँ कि मैं हाफिज़ नहीं हूँ, जो कुछ आयत याद है वो ज़ुबानी लिख देता हूँ। इंशाल्लाह हम आगे देख के भी लिखेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।